class 11 we'll focus on the types of covalent bond. We have already discussed about different types of range like single bond, double bond, triple bond. That is a different scenario, but now we'll focus one more thing that has been there in the course, and it's very important: sigma and pi bond. You know that in the covalent bond, that if you remember that we have atomic orbitals. These atomic orbitals, when they overlap, they leads to form you a molecular orbital. Now the atomic orbitals, when they are forming or they are overlapping, you must understand that two atomic orbitals leads to give you a molecular orbitals. And in that case we come across two types of you can say type of covalent bond. That is, one is your sigma and other is your pi. Sigma is represented in this manner, pi is written in this manner. Now how it's been formed, that is very important. The sigma bond कौन सा range होता है, how it is being formed. So we can focus on it. Let's focus on it. That if there is axial or head-on overlapping. Now what does it mean? It's new to you. So if you are taking two atomic orbitals and they are half filled, then when they go for overlapping, then they now what type of this thing, axial or head-on overlapping. Like for example, if you focus on S orbitals, जैसे S overlap करेगा, ये S और S के दो atomic orbitals. See this thing, we are talking about the hydrogen one. तो अब हमने दो atomic orbitals रखे. अब basically क्या होगा, ये overlap करेंगे and they will lead to you what? This is what? A molecular orbital. And these two are what? Your atomic orbitals, right? तो दे विल लीड टू यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब बेसिकली क्या हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग्स आपकी हो जाती हैं. अब एक और चीज़ है, जैसे एस और पी आपने ऑर्बिटल्स यूज़ करें तो उसमें एस ऐसा होगा, पी क्या है आपका, ऐसा है. ठीक है, तो एस ऐसा है, पी आपका डम्बल शेप है. यू नो इट वेरी वेल. एस इज़ ऑलवेज स्फेरिकल एंड पी इज़ ऑलवेज डम्बल शेप. तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये आपको क्या दे देंगे, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दे देंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे जाएंगे. ठीक है, और एस और पी जो ऑर्बिटल्स यू आर यूजिंग, दे आर हाफ फिल्ड. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो दिस इज़ योर एस पी ओवरलैपिंग होती है, और ये सिग्मा जो बॉन्ड बनेगा आपका इसमें, वो क्या बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ठीक है, और कुछ ले लेते हैं हम लोग. जैसे हमने देखा पी एंड पी ओवरलैपिंग करते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल. देखो पी जो है वो डम्बल शेप होता है. अगर आप इसको हेड टू हेड अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे. सो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, एक पी ऐसा है आपका एंड अदर पी इज़ ऑल्सो लाइक दैट, दे आर होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फिल्ड रहेंगे. ठीक है, दे आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड. तो ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये आपको लीड करेंगे एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल को. दिस इज़ ऑल्सो केस ऑफ योर सिग्मा दिस थिंग बॉन्ड. अब जो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फॉर्मिंग दिस थिंग, अब एक चीज़ और बात कर रहे हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, इनको हम बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमारा जो बना, अब ये क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड दैट इज बीन ऑर्बिटल दैट इज बीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज फॉर्म सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज बीन फॉर्म. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे के बात है. Now one more thing you have to remember, this bond is stronger due to a large overlapping of atomic orbitals over here takes place. And one more thing, the atoms forming a sigma bond can be rotated along the bond axis. This thing you have to remember. Now let's focus on the pi bond, which is represented in this manner. Now how it has been there, or what type of overlapping is been takes place. So whenever you go for the pi bond, there is always a sidewise or lateral overlapping takes place of half filled
एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, ठीक है, साइड वाइज। अब जैसे साइड वाइज किस में होती है, पी ऐसा होता है जब साइड वेव से लिखते हैं, तो ये ओवरलैपिंग अगर आपकी करेगी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस पोजीशन में भरे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर पाई बॉन्ड्स। आपको ध्यान देना जो बॉन्ड बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी देयर विल बी पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपका बना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज़ योर pi molecular orbital. This thing you have to remember. These things are there which is important, and it's a weaker bond. This thing is very important. There is this bond is a weaker bond. You know ना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। आपको पता है ना, जैसे वेरी इजी होता है कि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसमें ये मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है, उसको आप इजीली तोड़ सकते हैं कंपैरिजन वो जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल में मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे पाई है, इसमें क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है, आप ऑर्गेनिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना, और इसमें क्या है, सिग्मा ही है, तो इसको ब्रेक करना ईजी रहेगा कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड प्लीज़ फोकस ऑन द रीजनिंग पार्ट्स ऑफ इट, एंड डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिग्मा एंड पाई bonds. So this way you can have a look of it, and now we'll focus some other parts also.